Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss peroxysomes and glyoxysomes. So let's move to the whiteboard. So dear students, peroxysomes. Another important organelle. It is basically a single membrane bounded organelle responsible or involved in the formation and decomposition of hydrogen peroxide. Clear? And that's why it is called peroxisome. The peroxisome, peroxy means it is related to hydrogen peroxide और सोम means body. हम पहले भी बात करते हैं सोमा और सो means body और structure. तो ऐसी बॉडी या ऐसा स्ट्रक्चर जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन यानी कि सिंथेसिस और उसकी डिकम्पोजिशन में इन्वॉल्व हो, दैट इज कॉल्ड एज द पेरोक्सिसोम. नाउ इट्स डिस्कवरी. So it was discovered by the peroxisomes were discovered by Dieter and the co-workers in 1965. Clear? That is an MCQ. So Dieter, जिसने लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया था, उसी ने ही और उसके co-workers ने and his co-workers in 1965 they discovered a single membrane bounded organelle in liver cells. In liver cells. उन्होंने इसको डिस्कवर किया था especially for the very first time in the liver cells, and they are also present in the kidney cells. Liver cells, also in the kidney cells, and the cells or tissues that contain enzymes for formation and decomposition of H2O2. Clear? So discovered by Dieter and his co-workers in 1965 in the liver cells, as well as they are present in the kidney cells and the other tissues in which the enzymes for formation and decomposition of hydrogen peroxides are present. Clear? Now the enzymes
present in peroxisomes. तो डियर स्टूडेंट्स, peroxisome को peroxisome क्यों कह रहे हैं? The reason is they are involved in the formation as well as the decomposition of hydrogen peroxide. ये याद रखिएगा. इनको specialized Golgi vesicles भी कहा जाता है. They are also called as the special Golgi vesicles. Clear? और इनके अंदर जो एंजाइम्स मौजूद हैं डियर स्टूडेंट्स, that are the oxidases, peroxidases, and catalases, and glycolic acid oxidases, etc. So these are specialized enzymes which are present in the peroxisomes except from the other hydrolytic enzymes. They are specialized enzymes. Clear? So peroxidases, थोड़ी सी information मज़ीद बढ़ाते हैं. Peroxidases, these are involved in the oxidation of peroxides. In the oxidation of peroxides. जबकि catalases, they are specially designed. They are specially designed for the decomposition of H2O2, means the hydrogen peroxide, into water and oxygen. Clear? इसी तरह से ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, ये ग्लाइकोलिक एसिड जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होते हैं. ऑन एंड ऑन एंड ऑन. सो ये दो चीज़ें अहम थी इसमें ऑक्सीडेशन के हवाले से. सो कैटालिसिस इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है जो कि डीकम्पोजिशन कर रहा है H2O2 की. नाउ इट्स साइज which is given in our book. It is important regarding the MCQ's point of view. So the peroxisomes on an average are 0.5 micrometers in diameter. Clear? The dimension is diameter, not its length. Clear? और their occurrence, ये कहाँ पर मौजूद हैं, means कौन से organisms में मौजूद हैं. So they are present in plants. They are present in plants as well as in animals, as well as in yeast, as well as in the protozoans, clear? And they are also present in the algae. Clear? So that is the occurrence of peroxisomes. अब डियर स्टूडेंट्स, ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी peroxisome से रेलेवेंट. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब इस ऑर्गेनेल ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डीकम्पोज करना है तो उसको बनाता ही क्यों है. और डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात है, आपको पता है, आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. क्लियर? और अगर सेल के अंदर हमारे नॉर्मल जो यानी कि जो लिविंग सेल्स होते हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, स्पेशली इन द एनिमल सेल्स, ये अगर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए तो ये हमारे सेल्स के लिए टॉक्सिक साबित हो सकता है. ठीक है? तो फिर यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन क्यों हो रही है? वाई इट इज़ फॉर्म्ड एंड देन वाई इट इज़ डीकम्पोज्ड. जब एक चीज़ चाहिए ही नहीं तो उसकी फॉर्मेशन क्यों हो रही है? सो ये ज़रूर आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा. यू माइट बी कंसिडरिंग इट, सो आई एम गोइंग टू आंसर इट. एक्चुअली होता क्या है, जो पेरोक्सिसोम्स है,
अगर हम इसको फंक्शंस की हेडिंग में ले लें सो वो ज़्यादा बेटर होगा, तो वहाँ से मज़ीद आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि वाई इट इज़ सो. सो द पेरोक्सिसोम्स are involved in the detoxification of harmful drugs अब वो हार्मफुल ड्रग्स वो एडिक्टिव ड्रग्स भी हो सकती हैं, या फिर जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं मेडिसिनल ड्रग्स के वो भी हो सकते हैं. ठीक है, तो हर एक ड्रग का जो है वो टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं. तो जो उनके टॉक्सिक हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं जो इन ड्रग्स के या हार्मफुल ड्रग्स के, उनको डिटॉक्सीफाई करने में रोल है पेरोक्सिसोम्स का. और आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स कि ये वाला सारा जो डिटॉक्सिफिकेशन है दैट इज बेसिकली द रोल ऑफ लिवर. तो इसी वजह से हमने शुरू में बात की कि कहाँ से इसको डिस्कवर किया गया था, द लिवर सेल्स, फिर बाद में किडनीज में भी और कुछ टिश्यूज हैं वहाँ से भी डिस्कवर किया गया था. सो इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स एंड एल्कोहल, जैसे कि एल्कोहल है, ठीक है, ये भी एक हार्मफुल है, इसकी डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है वहाँ से लिवर सेल से. और द ब्रेकडाउन of long chain fatty acids. जो फैटी एसिड्स चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था, ठीक है, जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं उनकी ब्रेकडाउन में, ठीक है, और एमाइनो एसिड्स उनकी ब्रेकडाउन जब होती है, उनके जब ब्रेकडाउन हो रहा होता है, सो एज अ बाय प्रोडक्ट of catabolism of these chemicals, H2O2 is formed. H2O2 means the hydrogen peroxide is formed. मतलब कि बने कैसे? बने इस तरह से जैसे हार्मफुल ड्रग्स हैं वो डिटॉक्सीफाई हो रही हैं, अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, या फिर जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं उनका ब्रेकडाउन हो रहा है, या फिर एमाइनो एसिड्स हैं उनका ब्रेकडाउन हो रहा है. तो जब उनका ब्रेकडाउन होगा, ये ब्रेकडाउन कर कौन रहा है? ये एंजाइम्स, दीज एंजाइम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द पेरोक्सिसोम्स, उनकी ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं. तो उनकी जब ऑक्सीडेशन होती है इन सारे केमिकल्स की, तो उसका बाय प्रोडक्ट बनता है H2O2. मतलब कि अगर पेरोक्सिसोम ना हो तो ये H2O2 नहीं बनेगा. इसीलिए तो हमने कहा कि दैट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कि फॉर्मेशन तो कर ली, वो एज अ बाय प्रोडक्ट बना है, इस वजह से इसका नाम पेरोक्सिसोम बना, कि इनकी लाजमी तौर पर जब भी इनकी वो ऑक्सीडेशन होगी तो तब उसके नतीजे में H2O2 बनेगा. लेकिन अब H2O2 बन तो किया बाय प्रोडक्ट में, हमारा काम तो नॉर्मल फंक्शन जो था उसने कर दिया, डिटॉक्सीफाई भी कर दिया, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को भी तोड़ दिया, सारा कुछ हो गया, लेकिन H2O2 बन गया. अब H2O2 हमारे सेल के लिए वो हार्मफुल साबित हो सकता है, ये मतलब कि हमारे लिए फायदेमंद नहीं है. तो इसलिए अब जो बन गया है इसको डिटॉक्सिफाई करना है, इसको मेटाबोलाइज करवाना है, इसके हार्मफुल इफेक्ट से बचने के लिए इसको डीकम्पोज करवाना है. क्लियर? सो इसकी डीकम्पोजिशन में फिर क्या होता है, द peroxisomes then decompose the H2O2 formed as a byproduct of certain chemicals, जिनकी हम पहले ऊपर बात लंबी लिस्ट बता चुका हूँ, certain chemicals like the fatty acids or amino acids, the peroxisomes then decompose the H2O2 formed as a byproduct of certain chemicals into water and oxygen. उसको में तोड़ दिया जाएगा उसको. Clear? So this is done by the catalase, and this job
is done by catalysis. By catalysis. जैसे कि मैंने आपको बताया, the catalysis, they are specifically involved in the decomposition of H2O2 into water and oxygen. तो जब वो बन जाएंगे तो फिर इस तरह से अब वो उसके जो मुज़र असरात थे, जो टॉक्सिक इफेक्ट्स थे H2O2 के, वो उससे बचा जा सकता है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर इसकी फंक्शंस की एक और इंपॉर्टेंट बात इंफॉर्मेशन आपको बताता चलूँ, दैट पेरोक्सिसोम्स, they are also involved in the lipid biosynthesis. और कौन से लिपिड्स? द मेम्ब्रेन लिपिड्स। द मेम्ब्रेन लिपिड्स, उनकी बायोसिंथेसिस में भी इनका रोल होता है। क्लियर? सो दैट वाज अबाउट द पेरोक्सिसोम्स। नाउ another organelle which is very important, that is glyoxysomes. So dear students, the glyoxysomes, these are also single membrane bounded organelles which are rich in enzymes involved in the glyoxylate cycle. Glyoxylate cycle. तो ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं, लेकिन इनको हम ग्लायोक्सिसोम्स क्यों कहते हैं? ग्लायोक्सी से यहाँ से है, ग्लायोजाइलेट से है। मीन्स कि ये ग्लायोजाइलेट साइकिल को चलाने के लिए जो एंजाइम्स हैं, दे आर ओनली प्रेजेंट इन द ग्लायोक्सिसोम्स, दीज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। क्लियर? अब बात करते हैं कि ये ग्लायोजाइलेट साइकिल क्या है। व्हाट इज ग्लायोजाइलेट साइकिल? सो डियर स्टूडेंट्स, इन plants seeds, especially the lipid rich seeds, ऐसे seeds जिनके अंदर लिपिड्स बहुत ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल castor bean seeds or the sunflower or the soya bean, etc. और olives. क्लियर? तो ये ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें से हम यूजुअली ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल, जैसे कैस्टर बीन ऑयल, जैसे सोयाबीन ऑयल, जैसे सनफ्लावर ऑयल। सो ये ऑयल्स इन सीड्स के अंदर, सो दे आर रिच इन लिपिड्स। ठीक है? सो इन प्लांट सीड्स, ऐसे प्लांट सीड्स जो कि लिपिड्स के अंदर रिच होते हैं, ये उनकी एग्जांपल्स हैं। दे आर dependent on the conversion of stored fatty acids into carbohydrates, तो ये इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एंड आफ्टर द कन्वर्शन ऑफ फैटी एसिड्स into carbohydrates,
these are oxidized to produce energy that is required for the germination of a seed, of a lipid rich seed. क्लियर? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कि वो ग्लायोजाइलेट साइकिल में होता क्या है कि स्टोर्ड फैटी एसिड्स या लिपिड्स, इनको कन्वर्ट किया जाता है पहले कार्बोहाइड्रेट्स में, किसके जरिए? ग्लायोजाइलेट साइकिल के जरिए, और फिर उन कार्बोहाइड्रेट्स को किया जाता है ऑक्सीडाइज, और उससे जो मिलती है एनर्जी वो इस्तेमाल होती है जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए, यानी उसको सीड को सीडलिंग में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इस तरह से हासिल की जाती है। लेकिन किन के अंदर? विच आर लिपिड रिच सीड्स, नॉट इन द लिपिड पुअर सीड्स, जैसे कि पी, ठीक है, जो पी है दैट इज लिपिड पुअर सीड, उसमें ये ग्लायोक्सिसोम्स नहीं होंगे, और ये होंगे भी सिर्फ इसी वक्त के लिए, जब सीडलिंग बन गई, जब उनकी सीडलिंग से आगे उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, नाउ दे आर नो मोर ओवर देयर। क्लियर? ये जस्ट एक छोटे से ड्यूरेशन के लिए, और आम तौर पर प्लांट्स में, लेकिन इसके अलावा फंजाई में भी पाए जाते हैं, यीस्ट के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है, इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। क्लियर? लेकिन आम तौर पर दे आर रिलेटेड टू द प्लांट सीड्स एंड सीडलिंग्स। क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द ग्लायोजाइलेट साइकिल और इसमें किस तरह से कन्वर्शन होती है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक जस्ट आपको कॉन्सेप्ट्स के हवाले से बताता चलता हूँ कि ताकि कन्फ्यूजन न रहे, दैट कि इसमें जो फैटी एसिड्स हैं, जैसे कि एसिटाइल को एक का नाम आपने सुना होगा, ये 2 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, जो कि एंटर होता है इनटू द क्रेब्स साइकिल, इनटू द सिट्रिक एसिड साइकिल, इसको कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट इनटू, तो ये बेसिकली एसिटाइल कोए को कन्वर्ट किया जाता है सक्सीनेट के अंदर, और फिर सक्सीनेट से बनता है फ्यूमेरेट। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 11 उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे ये क्रेब्स साइकिल को, और फ्यूमेरेट से फिर बनता है मैलेट, और मैलेट से फिर बनता है द ऑक्सैलोएसीटेट, ठीक है, और फिर उस ऑक्सैलोएसीटेट जैसे बन जाए सो इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू ग्लूकोज, और ऑक्सैलोएसीटेट दैट्स अ फैटी एसिड, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये दैट इज बेसिकली अ लिपिड सोर्स। तो इससे जब आप कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब कि ग्लूकोज का बनवाना, लेकिन किससे? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, ठीक है, सो दैट इज ऑक्सैलोएसीटेट। और इसी तरह से ये एक नॉर्मल पाथवे आपको बताया, तो यहाँ पर ग्लायोजाइलेट साइकिल में एक और जो एडिशन होती है दैट इज द ग्लायोजाइलेट इटसेल्फ, ग्लायोजाइलेट, क्लियर? ग्लायोजाइलेट जो है वो इट इज कन्वर्टेड इनटू द सक्सीनेट, फिर उसी तरह से यानी कि ये बाईपास है, शंट है, उसके जरिए ग्लायोजाइलेट जो है बनता है, और ग्लायोजाइलेट जो है ये बेसिकली बनेगा फ्रॉम द आइसोसिट्रेट, ठीक है, और आइसोसिट्रेट लाइएज इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा और इसको ग्लायोजाइलेट में कन्वर्ट करेगा, बजाय इसके कि वो इसको कन्वर्ट करता अल्फा कीटोग्लूटारेट में। चैप्टर नंबर 11 में डिटेल से आएंगे। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये सारे फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। इन फैटी एसिड से क्या बनवाया जा रहा है? ग्लूकोज बनाया जा रहा है। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? दे आर लिपिड्स, और उससे क्या बनवाया जा रहा है? कार्बोहाइड्रेट। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज ग्लायोजाइलेट साइकिल। और इसके जो एंजाइम्स होते हैं दे आर प्रेजेंट विद इन द ग्लायोक्सिसोम्स, ठीक है। और लास्ट में ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि ग्लायोक्सिसोम्स are absent in lipid poor seeds. For example, the pea. Clear? So dear students, hopefully you are able to differentiate between peroxisomes and glyoxysomes. So hopefully आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे वैक्यूल्स को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।